session of Spoken English. Hope you all are doing good, busy with your studies, as well as you are practicing spoken English or speaking in English. We have come a long way, starting from the basic words. We have gone through different sections, different grammatical words, how to use the English words in speaking, in questioning, in answering, all these things. Okay, so today we will divide our class into different smaller sections so that we will be able to learn more different types of sentences or usage of English words. Okay, so first let's go into what is the secret of English vocabulary, or what is the secret to enter. Suppose a box is given to you which is fully packed and sellotape is pasted here and there. You will, as soon as you get the gift, you will start removing the sellotape. Or smaller kids, if you, those who don't want to tear out the gift paper, they will do it very slowly. Others, when a small baby, isn't it, tries to open that soon. Why? Because of the excitement to know what is inside. Okay, same way when we come to English vocabulary means words, knowing the words. Okay, when we come to English words, also same way. Now, those who are we have come along, I think we started in the month of September, October, like that. So, all these months, those who are having more of anxiety to know better way to speak in English, they would have gone through faster the different videos, or they would have gone more than once to learn the thing. Okay, others would have gone slowly. No worry, you can carry out during the holidays too. After your school session is done, you can go through those videos and you can carry out the learn the new words. Okay, now here the secret to English vocabulary. What is the secret? As I told you about the box, you will open the cover soon so that you know what is inside the box, isn't it? So same way, now to know the English vocabulary, or to be thorough, or to learn many new words, what you will do? First of all, let us divide the basic thing into two. First one is the active vocabulary. Active vocabulary means that which you have to remember. Okay, when you will remember the words, then only you will use it in speaking and in writing. I told you we are learning spoken English, how to speak in English, but at the same time in school you have to write essays, paragraph writing, letter writing, so many things are there. So you need these words everywhere. It's never a waste, isn't it? So that part, that is called as active vocabulary. So once again I'll repeat. Active vocabulary means the words you will have to remember it. And if you are remembering the words, you can use it for speaking as well as writing. Now, example I have given you. Chaos. Chaos means dash. What is the meaning of chaos? Now, you have not heard the word chaos. So, you'll keep on thinking, okay, somebody might know the word. Chaos मतलब बहुत ही व्यवस्थित नहीं है जो, है ना? बहुत कहीं हॉल में गए कुछ प्रोग्राम में, बिल्कुल लाइन नहीं, कुछ नहीं, सब धक्का मुक्की मारे. Oh, so you can tell it was a chaos there. Or the things are kept like this in the classroom. Copies. Suppose the teacher brings the bundle of notebooks in the class and tells everybody pulling out their copies. क्या होता है? Maximum होता है. Books, copies जो है सारे फैल जाते हैं मैम की टेबल में. Isn't it? So you can tell it was a chaos on the table, all the copies. इसका मतलब व्यवस्थित नहीं है. Okay. So disorder word you have to remember. तभी वो active vocabulary. ये जब मैं पूछूंगी आपसे chaos means what? Chaos means dash. या आपको chaos word use करना है कोई letter writing में, कोई paragraph writing में, कोई essay writing में,
Then or while speaking you have to mention the word. आपको chaos word और chaos का meaning याद रखना होगा. So that part is called as an active vocabulary. ठीक है. कब एक्टिव रहेगा? जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा. Isn't it? To remember, then only it can become the active vocabulary. Clear? Okay. Coming to the next part, there is another one type also. Chaos means 3 words दे दिए आपको. इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं. आप जैसे देखोगे, chaos means sadness. दुखी होने को chaos बोलते हैं. You will tell no. Then second is disorder. व्यवस्थित नहीं है. You will tell yes. Third is illness. तबीयत खराब, बीमारी. You will tell no. Now आपके पास जब 3 words 4 words मिल गए हैं या 2 words से मिले हैं, तो उसमें से आपको चूज करने जब बोला तो वो पैसिव वोकैबुलरी है. वो आपको कहाँ से मिला है? वो आप कुछ पढ़ रहे थे, किसी की बात सुन रहे थे, तो आपने सुन लिया. अब कोई उतना ज़्यादा स्ट्रेस है, बट आपको मालूम है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं. Many words are there in like this which कि हमें ऑप्शंस दिए रहेंगे तो हम बोल पाएंगे इसकी मीनिंग, लेकिन वो हमारे पैसिव फॉर्म में है. हमें वो यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने बोलने में, राइटिंग वर्क में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट हम उसको जब पढ़ते हैं हम समझ. यदि मैंने एक पैराग्राफ दिया आपको, रीड करो और मतलब समझाओ, सो यू कैन रीड इट एंड टेल द मीनिंग ऑफ chaos. ओके. या आप किसी की आप बात सुन रहे हो, उसने बोला हाँ देयर वाज अ chaos इन दैट हॉल ड्यूरिंग द वेडिंग. ओके, आपको समझ में आ गया, समझने में तकलीफ नहीं हुई. दैट इज अ पैसिव वोकैबुलरी. ओके, सो दिस इज द सीक्रेट टू इंग्लिश वोकैबुलरी. नाउ मैं आपको ये एडवाइस, ये सलाह दे रही हूँ कि ड्यूरिंग हॉलीडेज और वेन एवर यू गेट टाइम, और आप ऐसा सोच लीजिए कि मुझे 7 days है वीक में, मुझे रोज 2 words पढ़ना तो बहुत ईजी होता है. कोई भी 2 words. और आप अपने जो really interested हैं to learn spoken English, you can take a rough copy or you can keep a diary, और उस डायरी में आप 2 words, है ना, 2 words आज सीख लिए, वो 2 words का मीनिंग भी सीख लिए. ठीक है. तो और वो 2 words को आप, आपके पास 24 घंटे हैं. आपने आज सुबह वो काम किया, लिख लिया, 2 मीनिंग्स पढ़ भी लिए, उसके बाद आपके पास दिन भर है. आज आप जब किसी से भी बात कर रहे हो, कुछ ऐसी कुछ लिख रहे हो, कुछ ड्राइंग कर रहे हो, तो कहीं भी आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि उन 2 words को आप यूज़ करें. तो 7 days इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन हो गए, तो आपके पास 14 words हो गए. आपने नए 14 words सीख लिए. तो आप सोच लीजिए 1 month में आपका कितना हो जाएगा? 60 words. And it would be a good thing, isn't it? बहुत अच्छी. और maximum you try that you use those words. नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, है ना. जब हम यूज करेंगे vocabulary, then only it will be of use to us. Okay? So understood the secret to English vocabulary. याद रखिए, एक एक्टिव फॉर्म है, एक पैसिव फॉर्म है. एक्टिव मीन्स आपको उसका मीनिंग याद रहना चाहिए, उसका यूसेज मालूम रहेगा, तभी आप बोलते समय यूज कर सकते हो, लिखते समय यूज कर सकते हो. अनदर वन इज पैसिव वोकैबुलरी. आपके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं या कोई बोल रहा है तो आप समझ रहे हैं. ठीक है, आपको सेंटेंस फॉर्म में आ गया तो समझ में आ गया, लेकिन आपको जहाँ यूज करना आप यूज नहीं कर पाए. दैट विल बी पैसिव. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज क्लास. आवर नेक्स्ट सेक्शन इज हाउ यू आर एबल टू make or find out more words and divide it into certain sections. I'll repeat once more. आपके पास कुछ words जब आप मिलते हैं, you are getting some words. Okay, उसको एक बार आपने टीचर सीख लिया, फिर दूसरी बार आपने प्रिंसिपल सीख लिया, so all will be like spread out, है ना. तो हम उसको यदि एक ग्रुप में बना के रखें तो you will be able to easily remember the words. For example, अभी मैंने जस्ट ऊपर में कुछ कॉलम्स लिखे हैं. पीपल, प्लेसेस, एक्शंस, थिंग्स, प्रॉब्लम्स, कोई भी आप हेडिंग दे सकते हो. दैट्स अप टू यू. ओके, अभी हमने फर्स्ट इधर में एजुकेशन ले लिया. एजुकेशन से रिलेटेड कौन से टर्म्स आपके मन में आते हैं? पीपल में एजुकेशन जैसे बोलेंगे तो
यदि आप बहुत ऊंचे लेवल में सोच लीजिए तो एजुकेशन ऑफिसर है, ठीक है। प्रिंसिपल, स्कूल लेंगे तो प्रिंसिपल है, टीचर है, स्टूडेंट है, वाइस प्रिंसिपल, ऑल दीज वर्ड्स विल कम टू योर माइंड। ओके, नाउ वेयर आर दीज पीपल प्रेजेंट? प्लेसेस कौन किसमें आएगा? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ओके, एंड एक्शंस दे डू, क्या एक्शंस करते हैं स्कूल में? स्टडी, लर्न, टीच, ऑल दिस थिंग्स। ओके, अब और भी आप कॉलम्स बना सकते हैं। थिंग्स, कौन से थिंग्स स्कूल में यूज होते हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। इससे फायदा क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग अ चार्ट लाइक दिस? या ऐसे कॉलम्स में या इसको ग्रुप्स में डिवाइड करके रखने से फ़ायदा ये है, यूज़ ये है कि जैसे आपके पास उस ग्रुप में और नेम्स मिल जाते हैं, आप उसमें ऐड करके रखोगे तो आपको याद रहेगा जल्दी। ओके, वंस इन अ वाइल व्हेन यू टर्न द पेजेस यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक मैंने रिलीजन लिया है। व्हेन यू गो टू रिलीजन, मेन रिलीजन्स हम फोकस कर रहे हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस। Okay, then places, temple, mosque, church. Then the actions, क्या करते हैं टेम्पल में? Pray, we bless others, we believe in something. When you're going to church, when you're going to temple, you believe in that particular God. Okay, that's why you go there. So अब कौन से things वहाँ present है, क्या क्या problems हैं, like that you can improve your vocabulary. नेक्स्ट वन मोर आई हैव टेकन फॉर यू एग्जाम्पल, बिजनेस। बिजनेस जब सोचते हैं, कोई एक बिजनेस अब ले लीजिए तो उसमें मैनेजर होगा, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे, सुपरवाइजर होगा। ओके, कौन से प्लेस में होंगे? ऑफिस होगा एक, या फैक्ट्री होगा, या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। एंड व्हाट आर द एक्शंस? क्या वहाँ पे करते क्या वो लोग? काम, वर्क करेंगे। एंड इफ द सुपरवाइजर, ही विल प्रमोट द वर्क, ये करना है, वो करना है। ओके, एंड इफ इज अ मैनेजर, उसका काम है नए लोगों को रिक्रूट करना। सो रिक्रूट वर्ड यू गॉट, रिक्रूटमेंट वर्ड you will get. So in that way you will get more of words. You will think of more of words. You will get, जैसे कोई बात कर रहे हैं, कोई बुक्स में पढ़ रहे हैं, वाह हाँ जल्दी से आपके पास ये वर्ड मिल गया. ऐसे आप कुछ दिनों के लिए, I think like 6 to 7 months of little hard work. उसको हम हार्ड वर्क बोलेंगे. बाद में जो हम सीखते जाते हैं उसको हार्ड वर्क नहीं बोलते हैं. शुरू में जो डाला गया प्रयत्न है, जो मेहनत है, उसको हम हार्ड वर्क बोलते हैं, है ना. जैसे एकदम छोटे बच्चों का ले लीजिए आप, वो जब अल्फ़ाबेट सिखाते हैं पेरेंट्स या टीचर, उनके लिए तो आ लिखना या ए लिखना सिखाना भी बहुत मुश्किल, बहुत स्ट्रगल है ना. कभी आर की डंडी यहाँ की जगह ऊपर करेंगे, कभी उल्टा सी लिखेंगे, कभी उल्टा डी लिखेंगे. ये सब बाद में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है. क्यों? उनको देखने से फिर हमारा ब्रेन जो है उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है. सो जस्ट 6 to 7 months of hard work for the vocabulary, then you will be the fastest. Okay, so इस जो पोर्शन है, इस सेक्शन से हम क्या सीखे हैं, that you can divide the words into particular groups and then it will be easier for you to remember as well as use it. Okay, कैसे? या चाहे आप हॉरिजॉन्टल रोज में सीखिए, चाहे आप वर्टिकल रोज में सीखिए, ओके, या ऊपर से नीचे सीखिए, किसी भी फॉर्म में आप सीख लो, या एकदम बेसिक फॉर्म से एडवांस फॉर्म में जाइए. एनीवेज, इफ यू मेक पर्टिकुलर ग्रुप्स एंड लर्न द वर्ड्स, दैट विल बी इजी. दूसरी बात, आप यदि सीख रहे हो, आप अपने आपको अपना काम अकेले ही करना अच्छा लगता है, अपने आप ही सीखना अच्छा लगता है, सो डू इट अलोन. Or if you like, if brothers or sisters are there at home, or if you like a partner to learn with you, you can do that also. And one more way is there, कि कौन से वीकनेस के कारण आप सीख नहीं पा रहे हो जल्दी इंग्लिश, वो आप फाइंड आउट कर लीजिए. जैसे आपको याद नहीं रहता है, तो आपके साथ पार्टनर है तो आपको बार बार पूछ के याद दिला देगा. आपके पास, आप घर पे कर रहे हैं, मम्मी पापा के साथ है ये गेम, सो क्यों. तो कहाँ है आपका वीकनेस? यू हैव टू डायग्नोज द वीकनेस एंड देन यू विल बी एबल टू
do it well. So this is the second part of today's class. Okay, moving to the next part. Our next section is vocabulary hack. I'll tell you the meaning, what is called as hack. Okay, now before that I just want to give you a few tips on how you'll be able to speak fluently without mistakes, okay, in English. अब ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसे देश या अपना देश इंडिया में जहाँ हमारा मदर टंग इंग्लिश नहीं है, जैसे जर्मनी में मदर टंग जर्मन भाषा बोलते हैं लोग, है ना, इटली में इटालियन भाषा बोलते हैं। सो उसी तरह जहाँ पे बेसिक मदर टंग इंग्लिश नहीं है, वहाँ के लोगों को भी या हमारे इंडिया में भी कोई भी स्टेट के लोग, यदि हम पूछेंगे कि आपने अपने मदर टंग को कैसे सीखा, सपोज महाराष्ट्र मराठी बोलते घर पे, है ना, तो वहाँ के बच्चे यदि बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं तो भी हम पूछेंगे कि आपने अपने मदर टंग, तो उससे यदि हम पूछेंगे कि आपने इंग्लिश कैसे सीख लिया इतने अच्छे से, वो बोलेंगे मुंबई वाले हैं तो बोलेंगे हम तो हमारे बाहर निकलो तो सारे लोग इंग्लिश की बात करते, तो हमें भी सीखना पड़ा क्योंकि सुन सुन के हम सीख गए, है ना। और यदि पूछेंगे कि घर की मराठी आपने कैसे, मम्मी ने क्या ग्रामर सिखाया आपको पहले, बोलेंगे नो, पैदा हुआ तब से मराठी सुन रहे घर पे तो मराठी सीख ही गए, तो एक एडेड लैंग्वेज हो गया उनका। या जिनके जो जिस प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है घर पे, उधर क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं हिंदी भाषा सुन सुन के, उनकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाती है ना। तो इस तरह से सुनते सुनते अच्छी ठीक हो जाती है विदाउट ग्रामर मिस्टेक्स। कोई ग्रामर सिखाता नहीं है बोलने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि आप बोलते बोलते गलती हो गई या गलत वर्ड्स को गलत जगह में बोल दिया, नो वरीज, वो तो होता ही है, गलती किसी नहीं होती, ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, मिस्टेक्स होने दो, शुरू में एक दो मिस्टेक्स होंगे, लेकिन बोलने के बाद में आप यदि 5 मिनट किसी से कन्वर्स कर लिए, कन्वर्सेशन हो गया आपका, फिर आप वापस जब उसके बारे में सोचोगे तब आपको याद आएगा, ओ वहाँ उस वर्ड के बदले मुझे और अच्छा एक वर्ड यूज़ करना था। तो यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट द गुड वर्ड, और थोड़े बेटर वर्ड जो है वहाँ फाइंड आउट करेंगे। सो इन दैट वे you will be able to find out more words. Second thing, यदि आप न्यूज़ सुनते हैं टीवी में, यदि आप 2 टाइम न्यूज़ सुनते हैं तो उसको वन इन इंग्लिश, ओके, और एक ही सुनते हैं तो इंग्लिश में ही सुनिए। सेकेंड थिंग, सीरियल्स, यदि आप सीरियल्स देखते हैं 2-3 देखते हैं तो केवल एक ही हिंदी में देखना, नेक्स्ट ऑल शुड बी इन इंग्लिश। क्यों? थोड़े दिन आपको नहीं अच्छा लगा, क्या बोरियत है, वी कांट, उसके बाद जैसे आप उसके बोलने के पैटर्न, बोलने के स्टाइल को सुनते जाएंगे, यू विल फाइंड मोर इंटरेस्ट। ओके, वैसे कॉमिक बुक अभी छुट्टियों में मालूम है, अभी जैसे छुट्टियां लग जाएंगी तो सब कॉमिक बुक्स उधर से इधर पास करते हो ना आप सब, तो उसमें कॉमिक बुक्स में ट्राई टू गेट इंग्लिश कॉमिक बुक, उसमें भी कुछ कुछ अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे। Okay, so this is the basic principle या basic thing to improve your English speaking. Or I'm sure you'll be able to do it in a few months very fluently. Okay, so coming to the next, that is called as a vocabulary hack. Hack means shortcut. Shortcut से हम जल्दी अधिक से अधिक कैसे सीख सकते हैं। Okay, now here few words are given. Care, मेरे साथ आप भी बोल सकते हो, पावर, फियर, पेन, हेल्प, थॉट, यूज, लर्न, 8 वर्ड्स आर देयर। यस 8 वर्ड्स आर देयर। ठीक है, इन वर्ड्स के आगे, जैसे केयर के आगे हम कुछ लगाएंगे, हम उसे सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफिक्स। और केयर के सी के पहले कुछ लगाते हैं तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। Prefix and suffix that I know you will learn in English, or if you have already learned in English grammar. Okay, so careful, careless. Care के आगे मैंने एक suffix ful full भी लगा दिया, एक suffix less भी लगा दिया। तो एक care word से आपने और 2 words सीख लिए, careful, careless. Okay,
नाउ उस केयरफुल के आगे उसको एडवर्ब बनाने के लिए मैंने एक और सफिक्स लगा दिया, एल वाई सफिक्स, एल वाई। तो क्या हो गया, केयरफुल के साथ केयरफुली, केयरलेसली। क्लियर? आप मेरे साथ रिपीट कर रहे हो ना? नेक्स्ट, ये जो केयरफुल वर्ड है उसको उसके साथ में NESS सफिक्स लगा लिया, केयरफुलनेस एंड केयरलेसनेस। ठीक है, तो फ्रॉम वन वर्ड मैंने यहां 2 और जोड़ लिया, इधर 2 और जोड़ लिया, इधर जो, तो 6, 1 से हमने आगे और 6 वर्ड्स सीखे। क्लियर? So same way with everyone, everything. Now power, yes, FUL, powerful, powerless. Now LY लगा के एडवर्ब बना देंगे, powerfully, powerlessly. Then again NESS लगा लीजिए, powerfulness, powerlessness. Now okay, these words तो हम करेंगे रिपीट, लेकिन what is the use of these words? इनको हमें सेंटेंस में यूज करना है। ओके, बी केयरफुल व्हेन यू टच द स्विच, प्लीज डोंट बी केयरलेस विथ योर स्टडीज। सो वर्ड्स सीखने का मतलब ये है कि आपको उसको यूज में लाना है ना, यूज में लाएंगे देन ओनली इट इज यूज्ड। अदरवाइज क्या होगा, जैसे हम कचरे डब्बे में पेपर्स फोल्ड करके जाते जाते उसी तरह भरता जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वर्ड फियर, यस, वेरी गुड, कंटिन्यू विथ मी, फियरफुल, फियरलेस। इसके बाद फियरफुली, फियरलेसली। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें लगाना है, फियरफुल के साथ नेस, फियरफुलनेस, फियरलेसनेस। ओके, नेक्स्ट पेन, पेनफुल, पेनलेस। ठीक है, उसके आगे LY लगा लीजिए सफिक्स, पेनफुली, पेनलेसली। ओके, नेक्स्ट पेनफुलनेस, पेनलेसनेस। इन दिस वे, और आगे हेल्प, हेल्पफुल, हेल्पलेस, हेल्पफुली, हेल्पलेसली, हेल्पफुलनेस, हेल्पलेसनेस। Thought, thoughtful, thoughtless, thoughtfully, thoughtlessly, thoughtfulness and thoughtlessness. Next, use, useful, useless, usefully, uselessly, usefulness and uselessness. Next, harm, harmful, harmless, harmfully, harmlessly, harmfulness, हार्मलेसनेस। सो 8 बेसिक वर्ड्स से हम उधर इधर सफिक्स लगा के जो है डिफरेंट 48 वर्ड्स सीख लिए। ओके, दिस इज कॉल्ड एज वोकैबुलरी हैक। हैक मतलब शॉर्टकट। इतना ये एक नया वर्ड हम सीखने के लिए हमें बेसिक वर्ड ले लीजिए और उससे सफिक्स लगा के बहुत सारे वर्ड्स बन गए। बट एट द सेम टाइम एक बात आपको याद रखना है कि एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। यस, एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब हर वर्ड में हम ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे। ठीक है, उसका भी मैं बता देती हूँ। लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द एक्सेप्शंस। मीन्स किसी में क्या है केवल लेस लगा सकते हैं और किसी में क्या है फॉर्म को हमें चेंज करना पड़ता है। वो दोनों भी नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन वी गो टू द एक्सेप्शंस। लेस हुआ, फुल हुआ, ये सब में भी कुछ एक्सेप्शंस, मतलब हर वर्ड के साथ हमने नॉर्मल कॉमन जो है उसका मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, फर्स्ट वर्ड स्लीप। स्लीप वर्ड सब लोग जानते हैं ना। कोई रात में नींद नहीं आई हमें, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स घर पे है तो बोलते हैं ना वो बिल्कुल जरा सी भी नींद नहीं आई। सो यू विल टेल दैट इन इंग्लिश, स्लीपलेस नाइट। स्लीपफुल नाइट नहीं बोलते है ना। स्लेप्ट वेल, ओके, स्लीपलेस नाइट। जो बाहर दुकानों के वरांडा में सोते हैं, उनके पास घर नहीं होता है, तो उनको होमलेस पर्सन।
नेक्स्ट कोई स्टेज परफॉर्मेंस था, उसमें हम बहुत देख रहे थे कि कोई एक गलती हम निकाल ले उसमें से, एक भी गलती नहीं, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, बहुत ही कीमती चीज, ओके, उसको हम बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही वैल्यूएबल, ठीक है। वैसे ही वर्थलेस ऑब्जेक्ट, उसका कोई वर्थ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। नेक्स्ट, एंडलेस सिचुएशन, ऐसे हालात जो है वो ऐसे ही होता जा रहा है, उसको हम एंडलेस सिचुएशन बोलते हैं, कंटिन्यू होते जा रहा है, ओके। सेम वे कुछ वर्ड्स ऐसे जिसमें फुल लगता है। ब्यूटी, ब्यूटी वर्ड को हम चेंज करते हैं, ब्यूटीफुल पेंटिंग, पीसफुल प्लेस, डिलाइटफुल इवनिंग, मतलब बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, खुशी भरी, फ्राइटफुल एक्सपीरियंस, ओके, कुछ बहुत डरावना एक्सपीरियंस है तो फ्राइटफुल एक्सपीरियंस। एक कोई बिल्ली का बच्चा बहुत ही उथल पुथल करने वाला, बहुत उछल कूद करने वाला, तो हम प्लेफुल किटन बोलते हैं, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जहाँ पे हम LESS सफिक्स लगाते हैं, and these are the words which where we use the word use the suffix FUL, full, okay. In the next section we will learn how in a short 2 words or 3 words maximum we explain a big thing, मतलब ज़्यादा बिना बोले हम 2 शब्द में कैसे उस वर्ड का मीनिंग ला सकते हैं, ऐसे कुछ चीज़ सिखा सकते हैं। वीडियोस में बहुत आपको फुल एक्सप्लेनेशन ऐसे की तरह नहीं दिया जा सकते हैं। सो कुछ हम 8-10 एग्जाम्पल्स में बताती हूँ आपको, जिससे मीन्स 2 वर्ड एक्सप्रेशन से आप बहुत बड़ा मीनिंग कैसे बता सकते हैं, ओके। दैट इज द नेक्स्ट सेक्शन। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू से मोर विथ लेस वर्ड्स, मतलब कम वर्ड्स का यूज करके हम अधिक बातों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, या लंबी बात को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, okay. How can you express that only with 2 words, okay. Come on, ready? ध्यान से सुनना, at the same time you can see the board too, and वीडियो देखने के बाद you can try to use it also, that is the best thing, okay. First one is well done, है ना। कुछ भी आप कंपटीशन से आए हो तो आपकी क्लास की मैम बोलती है, अभिषेक वेल डन, मतलब तुमने बहुत अच्छे से किया, गुड जॉब, या मैम का कुछ लेके आने का था, आपने बहुत अच्छे से उस काम को कर लिया, वेल डन, गुड जॉब, दैट वी ऑल नो। नेक्स्ट, वेल सेड, वेल सेड मतलब आपने कुछ बोला और मैं आपके साथ सहमत हूँ, देन आई विल टेल वेल सेड, मीन्स यू सेड दैट थिंग वेरी गुड एंड आई ऑल्सो एग्री विथ यू, दैट इज वेल सेड। टू वर्ड्स बस है। थर्ड इज माई प्लेजर, ओके। आपके कोई आए थे आपके पास घर पे, उन्होंने बहुत सारे बातें बोले, आपकी तारीफ करती हो तो आप बोलते हो माई प्लेजर, मीन्स यू आर वेलकम, ओके। फोर्थ वन, अलाउ मी, समझ लीजिए डोर कहीं हॉल से निकल रहा है, रूम से निकल रहा है, या कुछ डोर खोलना है तो आप बोलते हैं अलाउ मी, मतलब मैं खोल देती हूँ आपके लिए, ओके। नेक्स्ट, हेल्प योर सेल्फ, सपोज कहीं खाने का इन्विटेशन आया है या किसी के घर में बफे सिस्टम है, सो वो लोग बोलते हैं हेल्प योर सेल्फ, मतलब आप अपनी इच्छा से जितना आपको लेना है आप ले लीजिए, हेल्प योर सेल्फ, दैट इज अ वे ऑफ टेलिंग। नेक्स्ट, वॉच आउट, ओके। रात को जा रहे हो इवनिंग में कहीं घूमने, साइकिल लेके, गाड़ी लेके, तो मम्मी कैन टेल वॉच आउट, बी केयरफुल। बी केयरफुल तो मालूम है हम लोग को ना, हमेशा मम्मी बोलती है ना, ध्यान देना, ध्यान से जाना, ये तो होता ही है, वो सुनाई देता ही है हम लोग को, तो दैट इज वॉच आउट। नेक्स्ट, आफ्टर यू, मीन्स कोई आपको बोल रहा है चलो, तो बोलेंगे आफ्टर यू, आप पहले जाइए, आपको मैं फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मीन्स यू आर वेलकम, आप फिर से आइए, आप फिर से बताइए ये सब बातें, ओके, दैट्स नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, टेक केयर,
कोई बुजुर्ग जाते हैं अपने यहाँ से तो बाय टेक केयर, या आप जा रहे हो कहीं से, बाय टेक केयर। टेक केयर का मतलब आप अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट विल डू। विल डू मतलब आपने जो बोला है वो मैं करूँगी। ओके, दैट इज विल डू। सो दीज आर सम ऑफ द टू, ऐसे बहुत सारे हैं, दीज आर नॉट द ओनली वंस। इस इंग्लिश, इस दुनिया में जितने इंग्लिश वर्ड्स है, टू वर्ड एक्सप्रेशंस, वो सारा तो हम नहीं बता सकते वीडियोस में, बट स्टिल अभी आपको समझ में आ गया ना, टू वर्ड्स का वो दो शब्द का कुछ अच्छा मीनिंग होता है, उसको आपको फाइंड आउट करके आपको यूज करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज वेल डन, वेल सेड, माई प्लेजर, अलाउ मी, help yourself, watch out, after you, no problem, take care, will do. Okay, so this section of two word expression, or say more with less, कम बोलो और अधिक express करने का, that is. Next, one more, the last section is there, and that I'll tell you some confusing words जो मोस्टली बहुत बड़ों को भी, नॉट ओनली द बिगिनर्स का खाली नहीं, बहुत जो इंग्लिश में बात करते हैं वो लोग भी कभी कभी उन वर्ड्स को गलत यूज करते हैं. सो सम ऑफ दोस 5 or 6 आई विल टेल यू सो दैट you will know how they are used. Okay, so here are some confusing words, जो ऑप्शंस मैंने दिए हैं, कौन से सही आपको चूज करना है. फर्स्ट वन इज हाउ कैन आई सक्सीड, होगा या सक्सेस होगा, मैं कैसे सफल हो सकती हूँ, या सब है ना. हाउ कैन आई, मैं कैसे सफल हो सकती हूँ. हाउ कैन आई सक्सीड. नेक्स्ट, यदि वहां पे हाउ कैन आई अचीव, मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, तो सफलता. हाउ कैन आई अचीव सक्सेस. ओके, सो हाउ कैन आई सक्सीड, हाउ कैन आई सक्सीड, मैं कैसे सफल हो सकती हूँ. हाउ कैन आई अचीव सक्सेस, सक्सेस को अचीव करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन स्मोकिंग. इधर जस्ट एक ए और ई का डिफरेंस है. स्मोकिंग अफेक्टेड और इफेक्टेड हिज हेल्थ. स्मोकिंग क्या करता है, अफेक्ट करता है ना, हानिकारक इफेक्ट करता है. स्मोकिंग हैड ए बैड अफेक्ट और इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ. स्मोकिंग का उस पर ओके बुरा असर हुआ, दैट इज इफेक्ट. नाउ वी विल चूज और चॉइस द न्यू हेड गर्ल. वी विल चूज, हम चूज करेंगे. नेक्स्ट है अनीता वॉज आवर फर्स्ट, हमारे फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट चूज नहीं, फर्स्ट चॉइस. ओके, सो इस प्रकार से मतलब जस्ट एक स्पेलिंग, एक वर्ड, अल्फाबेट का डिफरेंस होगा, बट आप अभी तो मैंने आपको हिंदी में समझा के दिया. लेटर थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आप खुद समझ जाएंगे. इंग्लिश में 2 बार पढ़ के देखिए, आपको हाउ कैन आई सक्सीड, हाउ कैन आई सक्सीड. हाउ कैन आई अचीव, अचीव करना है सक्सेस को. स्मोकिंग अफेक्टेड हिज हेल्थ. स्मोकिंग हैड ए बैड इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ. We will choose the new head girl. Anita was our first choice. Okay, these are the common mistakes जो normally even after practice also बहुत लोग अनजाने में करते हैं. So such words you have to pay more stress when you are going through, when you are reading, when you are listening. बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो just छोटे से एक अल्फाबेट को उधर इधर डिफरेंस आता है. Okay, so we have come a long way in our spoken English classes, and I hope you enjoyed the class. You got to learn more about the spoken English. Okay, so I hope and all the best wishes, so that when you go through the videos again and again, you'll be able to do well. You'll be able to speak fluently in English, and you reach greater heights. Okay, thank you. And take care. Practicing English
speaking in every step in the life ahead. Bye. Take care.